Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 science and here we are on the chapter 8 exercises. So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji. And if you want to register for one-to-one sessions, you can fill up this form. I'll share the link in the description section. तो हम पहले इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो आप इस चैप्टर का थ्योरी वाला चैप्टर भी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. It says an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force, right? Second is inertia. So, natural tendency of objects to resist a change in their state of rest or of uniform motion, it's called inertia. Mass of an object is a measure of its inertia. Mass की SI unit होती है किलोग्राम kg. Force of friction ये क्या होता है? It always opposes the motion of objects. ठीक है? Second law of motion क्या कहता है? Rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force, right? Next is SI unit of force is kg meter per second square. Okay, it's called Newton also, represented by capital N. So a force of 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of 1 kg, right? Momentum क्या होता है? Momentum of an object is the product of its mass and velocity and it has the same direction as that of the velocity. इसकी SI unit होती है kg meter per second. Third law of motion क्या कहता है? To every action, there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies, right? So let us see a very conceptual question here. Which of the following has more inertia? Okay, inertia हमने देखा था, it's a tendency of an object to resist the change in its state of motion or of rest, right? And it depends on the mass of the object. तो फर्स्ट इज अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. ठीक है, तो इसमें स्टोन में ज्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि स्टोन का मास ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू रबर बॉल. रबर बॉल बहुत लाइट वेट होती है, राइट? सेकेंड इज बाइसिकल और ट्रेन. वेरी सिंपल, ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि ट्रेन का मास काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाइसिकल. 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन. तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि 1 रुपी कॉइन लाइटर होता है एज कम्पेयर टू 5 रुपी कॉइन, राइट? So here's the second question. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. ठीक है, एक situation given है. A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. ठीक है, goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. So ये situation है. So we will identify कब कब velocity change हुई ball की. ठीक है, also identify the agent supplying the force in each case. तो basically 4 times इसकी velocity change होगी. First is when the player kicks the football to another player. ठीक है, तो force कहाँ से मिला? First player's foot. Okay. Second, when the second player kicks the football towards the goal, तब second change आया और force किसने दिया? Second player's foot ने. ठीक है. Third change कब आया? When the goalkeeper collects or stops the football. Okay. Force कहाँ से आया? Goalkeeper's hands. And fourth is when the goalkeeper kicks the football towards the player of his own team, तब एक change आया और force कहाँ से मिला? ये goalkeeper's feet से, right? Third question is very conceptual. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. Okay. So जब हम किसी भी ट्री को vigorously shake करते हैं किसी branch को, तो branch moves back and forth rapidly. ठीक है. Leaves will tend to remain in their original state of rest. Why? Because of inertia. So as a result, the leaves get detached from the branch. So this is the main reason. Fourth question is, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? ये तो आपने observe किया होगा, right?
तो like when a bus moving bus breaks to a stop, तब क्या होगा? Your body tends to remain in motion due to inertia of motion. ठीक है? So you lurch forward when the bus suddenly stops. And when a stationary bus accelerates, तब क्या होता है? Your body tends to remain at rest due to inertia of rest. So you fall backward when the bus suddenly starts moving. Right? So here's the numerical. इस टाइप के numericals आते हैं इस chapter से. Let's see them. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. ठीक है, तो time हो गया 2 seconds, mass हो गया 5 kg. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. तो u हो गया initial velocity 3 meter per second, v हो गया final velocity 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. ठीक है, तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो आपको पता है. ठीक है, फोर्स को अगर आप एफ से डिनोट करते हो तो एफ किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के, राइट. और आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन देखी थी ना हमने, तो वहां से एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा. सो वी कैन राइट फोर्स एज दिस वन. तो इसमें हमें सारी वैल्यूज पता है, विल सब्स्टिट्यूट देम, और हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन. ओके, अब हमसे पूछा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें निकालनी है, राइट. नाउ अब हमने क्या किया? इस फोर्स को अप्लाई किया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको पता है. तो v इज इक्वल टू यू, ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे? एफ बाय एम. फोर्स कितना अप्लाई किया है? फोर्स हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया है, राइट. एंड मास यू नो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ v एज 13 मीटर पर सेकेंड, राइट. Here comes the second example, which would require a greater force. Okay, accelerating 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square. तो mass into acceleration force होता है. ठीक है, तो पहले वाले F1 क्या हो जाएगा? 2 into 5 10 न्यूटन्स, और F2 सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? 4 into 2 8 न्यूटन्स, राइट. तो हमारा किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा? फर्स्ट केस में, राइट. Here's the third example. So a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 108 किलोमीटर पर आवर हो गई. ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि हम स्टॉपेज पे जा रहे हैं, राइट. उसके बाद we have to calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. m is 1000 kg. ठीक है, टाइम 4 seconds का है, राइट. तो हमें बेसिकली फोर्स निकालना है. तो फोर्स हमारा क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे v माइनस यू बाई टी. So we substitute all the values and we get the force as minus 7500 newtons. नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स है वो ब्रेक्स जो एक्सर्ट करे, इट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द मोटर कार, तभी तो वो उसे स्टॉप करेगा, राइट. ओके, हियर कम्स एग्जांपल 8.4. सो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एक मास m1 को तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दे रहा है और दूसरे मास को अलग एक्सेलरेशन दे रहा है. नाउ व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. F इज इक्वल टू m इनटू a, तो m क्या हो जाएगा? F बाय a. ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप m1 निकाल लो और m2 निकाल लो. ठीक है, m1 आ गया 0.5 kg, m2 आ गया 0.25 kg. तो टोटल मास निकाल लेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा 0.75 kg. तो 5 न्यूटन्स है और मास हमें पता है 0.75 kg, तो F by m करके हम फाइनल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे.
तो वो कितनी आ जाएगी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हियर इज द फिफ्थ एग्जांपल। सो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 grams मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो बेसिकली फोर्स निकालना है। पहले हम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। मास हमें पता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसमें आप देख लो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो a इज v माइनस यू बाई टी और टाइम कितना हुआ है यहाँ तक 10 सेकेंड्स का, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब आपको एक्सेलरेशन पता है, मास 20 ग्राम्स था, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा -0.0004 न्यूटन। नेगेटिव साइन फिर से दिखाता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टेबल ऑफ द बॉल, सॉरी। These are very conceptual questions from exercise. Let's discuss them one by one. First is an object experiences a net zero external unbalanced force. ठीक है. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions. ठीक है. See, ऐसा हो सकता है कि वो एक non-zero velocity से चल रहा हो, even when net external force acting on it is zero. हो सकता है ऐसे. क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड द रीजन इज क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी unless acted upon by an unbalanced external force, right? So that's the reason. Second question is, when a carpet is beaten with a stick, then dust comes out of it. You have to explain this. So when you beat it with a stick, carpet moves rapidly due to the force applied, but the dust particles, they tend to remain in their original state of rest due to inertia. So this causes the dust particles to separate from the carpet and come out, right? Third question is, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? C. Luggage kept on the roof of a bus is tied with a rope to prevent it from falling due to sudden changes in the motion of the bus. ठीक है, जब बस एक्सेलरेट या डेसेलरेट करेगी तो क्या होगा? लगेज टेंड्स टू रिमेन एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ड्यू टू इनर्शिया व्हिच मे कॉज इट टू स्लाइड और फॉल ऑफ, ठीक है। नाउ टाइंग द लगेज ensures that it remains securely attached to the bus, so that's the reason, right? Next, we have an objective question. So, a batsman hits a cricket ball which then rolls on level ground. After covering a short distance, ball comes to rest. So, ball slows to a stop because, so you have four options. We can go through that. Batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to force. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball. So basically third one is correct. बॉल के मोशन को ओपोज करने के लिए एक फोर्स है, right? So let us see the fifth question. It says a truck starts from rest. So initial velocity u0 हो गई and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters. So s हो जाएगा 400 meters in 20 seconds. Time हो गया 20 seconds. Find its acceleration. तो आप बेसिकली ये इक्वेशन लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यू गेट द रिजल्ट ऑफ a एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। 7 टन्स मतलब 7 इंटू 1000 kg हो जाएगा, 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो फोर्स विल बिकम 14000 न्यूटन्स, राइट। Next is question number 6. So it says a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second square across a frozen surface of a lake and comes to rest.
आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज 50 मीटर्स। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हम, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन वी विल यूज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सारी वैल्यूज डालेंगे, a आ जाएगा हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमें पता है 1 kg है, 1, एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव है, -4 यू कैन पुट। ठीक है, तो -4 न्यूटन विल बी द आंसर। माइनस में क्यों है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि मोशन को अपोज कर रही है, राइट। तो हियर कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें एक 8000 का इंजन है, इट पुल्स द ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 5 इंटू 2000। ठीक है, तो ये है हमारा मास 8000 प्लस 5 इंटू 2000। If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000 Newton, ठीक है, तो देखो फोर्स ये लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इतना है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस होगा, तो इफेक्टिव फोर्स हमारा आ जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 40,000 माइनस 5,000 दैट इज 35,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो फोर्स ये आ गया, मास हमने अभी देखा था कैसे कैलकुलेट होगा, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम देखते हैं एट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, तो m 1500 kg हो गया। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन माइनस में ले लो ये वैल्यू, तो फोर्स कितना हो जाएगा m इंटू ए। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2550 न्यूटन। तो माइनस में था ना एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स भी नेगेटिव ही होगा, so it will be in a direction opposite to the motion of the vehicle, right? Now here's an objective question. What is the momentum of an object of mass m moving with the velocity v? ठीक है, momentum क्या होता है, mass into velocity। ठीक है, m into v। तो basically कौन सा option हमारा correct होगा, D option will be correct, right? 10th question says using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. ठीक है, तो what is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। ठीक है, इक्वल होगा वो बैलेंस करने के लिए, सो इट विल बी 200 न्यूटन, राइट। 11th question है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, object pushes back on us with an equal and opposite force। ठीक है, now if the object is a massive truck parked along the roadside, will not move। ठीक है, now a student justifies this by answering that the two equal and opposite forces cancel each other। So we have to comment on this logic and explain why the truck does not move। ठीक है, तो स्टूडेंट की जो जस्टिफिकेशन है वो तो इनकरेक्ट है। ठीक है, now two equal and opposite forces they cancel each other, ये जो उसने बोला है इस कंटेक्स्ट में ये wrong है। why? According to Newton's law of motion, force exerted by you on the truck is equal in magnitude and opposite in direction to the force exerted by the truck on you। ठीक है, however these forces act on different objects, so they do not cancel each other। okay, this is the first reason। Second is truck इसलिए move नहीं करेगा because the force you apply is insufficient to overcome the static friction between the truck's tires and the ground। ठीक है, वो frictional force को overcome नहीं कर पा रहा। If the applied force exceeds the maximum static friction, truck will start to move, right? So this is the correct logic. Now here's question number 12. A hockey ball of mass 200 grams. Grams को kg में कैसे convert करेंगे? 200 upon 1000. So 0.2 grams हो जाएगा, kg हो जाएगा mass। Traveling at 10 meter per second is struck with a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second। तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे आपने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो नाउ अब रिटर्न इस डायरेक्शन में अब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इसमें जो फाइनल वेलोसिटी v होगी उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो इट विल बिकम -5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये u के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट? हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो इनिशियली मोमेंटम क्या था? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v u इज 10, v इज -5, फाइनल आंसर वी गेट 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना चेंज इन मोमेंटम होगा इस, राइट? So 13th question is like a bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. ठीक है, तो मास गिवन है 10 ग्राम्स, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, सो इट बिकम 0.01 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि इट्स कमिंग टू रेस्ट v 0 हो जाएगा, टाइम है 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगी, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है, एक्सेलरेशन नोन है, तो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, करेक्ट? नेक्स्ट इज हमें और क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, तो एस निकालना है और फोर्स हम निकाल ही चुके हैं। तो एस कैसे निकलेगा? ये इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस आ जाएगा 2.25 मीटर्स, राइट? नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। ठीक है, तो इनिशियली 1 kg का ब्लॉक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नाउ अब क्या हुआ? ये कोलाइड कर रहा है 5 kg के ब्लॉक के साथ। ठीक है, फिर ये एक साथ मूव करते हैं। तो हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी 1 into 10, दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। और हमेशा टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट सेम होता है, तो आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? 1 kg प्लस 5 kg, दैट इज 6 kg। तो 6 इंटू वी, वी आप ले लो कि इसकी वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की v है वेलोसिटी। तो दोनों केसेस में मोमेंटम सेम रहेगा, तो 10 विल बी इक्वल टू 6v, तो v कितना हो जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड, राइट? Question number 15. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. तो m पता है हमें, u इनिशियल वेलोसिटी पता है, v फाइनल वेलोसिटी पता है, t पता है। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, m इनटू v, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं v माइनस यू बाई टी करके। ठीक है, सारी वैल्यूज डालेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की वैल्यू डाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली, तो फोर्स कितना हो गया? 50 न्यूटन्स, राइट? 16th क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. ठीक है, Akhtar and Kiran started pondering over the situation.
Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. ठीक है, क्योंकि change in velocity of insect was much more than that of the motor car, right? अख्तर ने क्या बोला, like since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. Okay, but Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. So just comment on these suggestions जो इन तीनों ने बोला, that we need to do. ठीक है, तो फर्स्ट इज किरण सजेशन जिसमें कि था कि इंसेक्ट सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम. सो ही इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी चेंज, क्योंकि इंसेक्ट की वेलोसिटी तो ड्रास्टिकली चेंज करेगी, पर कार की वेलोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मास है कार का एज कम्पेयर टू द इंसेक्ट. ठीक है, अख्तर का सजेशन था लाइक कार एक्सर्ट्स अ लार्जर फोर्स. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन इंसेक्ट is equal and opposite to the force exerted by insect on car. Okay, और राहुल का जो सजेशन है लाइक इक्वल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये करेक्ट है. ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय कार एंड इंसेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन इक्वल चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो इंसेक्ट एक्सपीरियंसेस अ मच लार्जर चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है. ठीक है, तो अगर तीनों का हम देखें तो राहुल का जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट. ओके, कार और इंसेक्ट सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी. ओके, पर इफेक्ट इंसेक्ट का ज्यादा नोटिसेबल है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर मास, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. हाउ विल मोमेंटम विद अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर, ठीक है, इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मास हो गया 10 kg, एस कितना डिस्टेंस से फॉल किया 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 100, 0.8 मीटर्स आ जाएगा. एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और यू है 0, इनिशियली हमारी वेलोसिटी इसमें 0 है. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. u 0 है तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2as. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी. ओके, मास इज 10, वेलोसिटी इज 4, सो 40 kg मीटर पर सेकेंड, राइट. नेक्स्ट इज some additional exercises were there. Let's talk about them. तो इसमें क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि 0 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस है, 1 सेकेंड पे कितना, एंड सो ऑन. सो व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, कि वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या 0 है. और सेकेंड है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस. तो इनिशियली अगर हम ऑब्जर्व करें, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, आप देखोगे कि अगर आप डिस्टेंस की इक्वेशन लिखो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टी क्यूब आएगा. 0 क्यूब इज 0, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 एंड सो ऑन. ठीक है, तो बेसिकली यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा हमारा डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यूबिक रिलेशनशिप है इसमें. ठीक है, नाउ अगर हम अब नेचर ऑफ एक्सेलरेशन देखना चाहें तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे. ठीक है, टाइम 0 से टाइम 1 तक अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस 1 माइनस 0, डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, टाइम में 1 माइनस 0, टाइम में चेंज आ गया. इसी तरह t इक्वल टू 1 से 2, हर उसके लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे. तो आप देख सकते हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. ठीक है, और आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. तो आप हर टाइम इंटरवल के लिए जो जो वेलोसिटी आई थी उन्हें डिफरेंस फाइंड आउट करके और इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम. ओके, so basically force is directly proportional to acceleration, तो net force obviously increase करेगा with time. ठीक है,
So दो conclusions हो गए. Acceleration is increasing with time, and increasing acceleration shows a net force is acting on an object. It's not constant, but that force is also increasing with time. Correct? Now we have another question A2. इसमें हमें क्या given है? Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. ठीक है? Now, same motor car can be pushed by three persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. ठीक है? Force. Okay, what force like each person pushes the motor car with, that we have to find out. So force is equal to mass into acceleration. So 1200 into 0.2, it gives us 240 newtons, right? Now, A3. A hammer of mass 500 grams. Grams को kg में convert कर दो upon 1000, so mass becomes 0.5 kg. Moving at 50 meter per second, तो initial velocity u हो गई 50. Strikes a nail. Nail stops the hammer with a short time of 0.01 seconds. तो ये हमारा time है. Stop करता है तो v 0 हो जाएगा. Acceleration निकाल लेंगे v minus u by t से. ठीक है, this is the acceleration. Okay. और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास पता है हमें, एक्सेलरेशन आ गया, अभी मल्टीप्लाई 2500 न्यूटन इज द फोर्स, राइट? So here comes the last question of the chapter. A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. ठीक है, तो मास हमारा है 1200 kg, u इनिशियल वेलोसिटी होगी 90 km per hour. It is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds. So time 4 seconds, final velocity 18. Okay. Now acceleration निकालना है हमें. तो acceleration क्या होगा? V minus u by t. We substitute the values. 5 meter per second square is the acceleration. Right? Negative आएगी acceleration, but जो उसका magnitude होगा वो 5 होगा. और क्योंकि ये slow down कर रही है ना हमारी basically car को, तो इसलिए इसकी value negative. Right? Second thing which is asked is change in momentum. Momentum में change कितना आ जाएगा? m into u minus v. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये हम 1000 by 3600 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है ना, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, इसी तरह यहाँ भी करेंगे. सो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 24,000 kg मीटर पर सेकेंड. और फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 12. ठीक है, 1200, acceleration is 5, so 6000 newtons is the force. So this completes the exercises of this chapter. I hope everything is clear to all. अगर आपको कोई problem है, you can post it in the comment section, and do not forget to subscribe the channel to get regular updates. Also, stay tuned to Learn with Nisha ji for more updates and to increase your understanding of the subject. Thanks for watching.